कल अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिस्कस किया था। अपन ने 3 टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। वन more again repeat electric field, the area around the charge where electric effect can be experienced is known as electric field, and the force acting on unit positive charge when it is placed into the electric field is known as electric field intensity। ठीक है, electric field intensity represented by E, E इक्वल टू अपन ने F अपॉन Q0। इसका वेक्टर फॉर्म भी देखा था अपन ने कल, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये अपन ने कल डेरिवेशन देखा। अब इसके बाद अपन को डिस्कस करना है आज अपन को करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। सबसे पहले देखना है अपन को इलेक्ट्रिक डाइपोल and electric dipole movement। Electric dipole when two equal and opposite charge, when two equal and opposite charge are placed at very close, या अपन कहते हैं at less separation, then this system is known as electric dipole। Suppose plus q charge and minus q charge are placed at less separation, plus q charge and minus q charge are placed at less separation, then this system is known as electric dipole, and the distance between plus q and minus q charge is known as dipole length। Dipole length is represented by 2L। डाइपोल लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2L से। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बोला हमने? when two equal and opposite charge are placed at very close, या अपन कह सकते हैं at very अपन कह सकते हैं are placed at less separation, then this system is known as electric dipole। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। the distance between, ठीक है, two charges is known as dipole length। Dipole length is represented by 2L। Dipole length is represented by क्या? 2L। Dipole length को अपन 2L से represented करते हैं, right? And the electric field due to electric dipole, या electric field produced due to electric dipole is known as dipole field। Dipole field, electric field produced due to electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो डाइपोल फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड या डाइपोल फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक दफा और रिपीट करो। when two equal and unlike charge, equal and unlike charge, यहाँ पर बोल सकते हैं two unlike charge of equal magnitude are placed at very small distance, less separation, very close to each other, then this system is known as electric dipole, and the distance between two electric charges is known as dipole length। Dipole length is represented by 2L। Dipole length is represented by 2L, right? And electric field, देखिए यहाँ अपन को देखना है डाइपोल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए अपन ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एरिया अराउंड, देखो उसमें बताया था एरिया अराउंड ए चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब हम कह सकते हैं टोटल डाइपोल के रीजन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है
वो कहलाता है आपको डाइपोल फील्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड या डाइपोल फील्ड। अब आगे देखेंगे अपन डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अभी अपन ने क्या देखा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट देखिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बोला? When two unlike charge of equal magnitude are placed at a very small distance, then this system is known as electric dipole, and distance between plus and minus q charge is known as dipole length. Dipole length is represented by 2l. The electric field produced due to electric dipole is known as dipole field. अब अपन को देखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट, एनी वन चार्ज q एंड डाइपोल मूवमेंट 2 इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। देखिए डाइपोल लेंथ, एनी वन चार्ज एंड डाइपोल लेंथ, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या बोला हमने? द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of any one charge of electric dipole, magnitude of any one charge of electric dipole and the dipole length is known as electric dipole moment. Electric dipole moment is equal to the electrical charge, any one charge into dipole length. Electric dipole moment is a vector quantity. देखिए electric dipole moment is a vector quantity. Its direction is from नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन अभी आगे डेरिवेशन में हम प्रूव करके देखेंगे इंट्रोडक्शन। इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज, ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज, या ऐसा बोल सकते हैं the product of magnitude of any one charge and dipole length is known as electric dipole moment. Electric dipole moment is represented by p if the distance between, ठीक है, या अपन कह सकते हैं length of dipole, electric dipole is 12, ठीक है, and magnitude of any one charge is q. Therefore dipole moment क्या हो जाएगा? q into 2l. p equal to क्या हो जाएगा? 2ql. इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? p equal to 2ql. इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है? the product of any one charge and the dipole length is known as electric dipole moment. It is, ठीक है, represented by p. It is a vector quantity. इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कौन सी क्वांटिटी है आपकी? वेक्टर। इस डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। कहां से? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज में, राइट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है? p इक्वल टू q इनटू 2l। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसका देखो एसआई यूनिट देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का कौन सा यूनिट बेटा? एसआई यूनिट। p इक्वल टू होता है 2ql। 2 तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, q क्या होता है? कूलम इनटू l मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है? कूलम इनटू मीटर, राइट। सीएस यूनिट होता है, अगर अपन डिस्कस करें तो सीजीएस यूनिट आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है स्टेट कूलम इनटू सेंटीमीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज at into डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ l लेंथ, सो जाएगा m0 l t into a। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l t a, ऐसा यूनिट कूलम इनटू मीटर, c स्टेट कूलम इनटू सेंटीमीटर। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है ये? वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन क्या होता है? देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट फ्रॉम नेगेटिव
चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद आगे हम ठीक है एंड ऑन पोजीशन और बोथ साइड ऑन पोजीशन बताते हैं। इससे पहले हम अंत में रिपीट करते हैं, देखिए then two unlike charge of equal magnitude are placed at very small distance, then the system is known as electric dipole, and the distance between two charges is known as dipole length. The electric field produced due to electric dipole is known as dipole field. Right? Dipole moment, the product of any one charge, product of any one charge of electric dipole and dipole length is known as electric dipole moment. Electric dipole moment, ठीक है, ऐसे electric dipole moment is a vector quantity. Its direction is from negative to positive, which is represented by P. Its SI unit coulomb meter, CS unit state coulomb centimeter और dimension formula m0 LT into A, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब आप देखेंगे ठीक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए अभी अपन ने देखा था इससे पहले अपन लास्ट मतलब हमने कल के वीडियो में अपन ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उसमें अपन ने देखा था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। लेकिन ये देखा था अपन ने ड्यू टू कौन सा चार्ज, पॉइंट चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं, 2 चार्ज, एक होता है प्लस चार्ज और एक होता है माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इसके लिए अपने पास 2 मेथड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइप से अपन कैलकुलेशन करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो अपन ने देखा था, उसमें तो देखा था 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर। अब अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए अभी अपन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब नंबर फर्स्ट इन end on position और सेकंड in broad side on position। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इन end on position और in broad side on position। इसमें हम 2 डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन end on position, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं एंड ऑन पोजीशन। सपोज दैट, देखिए पहले हम एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे एंड ऑन पोजीशन। देखिए सपोज किया अपन ने AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, सपोज किया AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हिच इज मेड ऑफ प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज। The length of electric dipole is 2. Length of electric dipole is 2. समझना? अब देखिए, we have to determine the electric field intensity due to electric dipole. अब देखिए, if a point at which intensity of electric field is to be determined is taken on the axial line। देखिए दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ये ना कहीं पर भी पॉइंट होता है, जैसे सपोज दैट पॉइंट P है, then point is known as end on position। क्या, end on position। समझे? if a point at which intensity of electric field is to determine due to electric dipole is taken on the axial line। कहां, both the charge को ज्वाइन करने वाली
लाइन पर कहीं पर भी देखिए पॉइंट यहाँ पर भी ले सकते हैं P, पॉइंट यहाँ पर भी P ले सकते हैं, यहाँ पर भी, अब कहीं पर भी उसकी जो लाइन पर होता है तो उस पॉइंट को बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। ये कौन सा पॉइंट है? एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन देखिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये +2 चार्ज और ये माइनस, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है डाइपोल एक्सिस। तो ये डाइपोल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर हो तो जब कहीं पर ये पॉइंट हो सारे पॉइंट कहलाते हैं एंड ऑन पोजीशन। क्या होता है एंड ऑन पोजीशन? हम डेफिनेशन बोलेंगे। एंड ऑन पोजीशन क्या बोला? ए पॉइंट एट विच intensity of electric field is to be determined is taken on the axial line of electric dipole। कहाँ लेते हैं? axial line। Then the point is known as end on position। It is also known as axial position। Right? It is also known as axial position or longitudinal position। देखिए end on position, axial position, longitudinal position। end on position, axial position, longitudinal position। एक दफे end on position देखो, जिस पॉइंट पर देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमें ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये +2 चार्ज, ये -2 चार्ज, समझना। इसकी लेंथ है 12, ठीक है। अब एक्सियल पोजीशन क्या है कि कोई भी पॉइंट जिस पर जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करना है, देखो इस लाइन पर इनको ज्वाइन करने की लाइन पर कहीं पर भी हो, जैसे यहाँ पर है P, यहाँ क्या कहलाएगा? एक्सियल पोजीशन। क्या कहलाएगा? एक्सियल पोजीशन। क्या? एंड ऑन पोजीशन और लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे? देखिए एंड ऑन पोजीशन, ए पॉइंट एट विच intensity of electric field is to be determined is taken on the axial line of electric dipole, then the point is known as end on position with respect to electric dipole। point is known as end on position with respect to electric। अब देखिए ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या है? ये पॉइंट एट विच intensity of electric field is to be determined are taken on the कोएक्सियल लाइन, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर पॉइंट हो, यहाँ पर पॉइंट हो, यहाँ पर कहीं पर भी हो, ये पॉइंट कहलाता है आपका क्या? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। देखिए ये क्या हो गया आपका? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये भी क्या है? ब्रॉड साइड ऑन, कहीं पर भी इस लाइन पर कहीं पर भी होता है तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इस लाइन पर होता है तो एंड ऑन पोजीशन। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल to be determine the intensity of electric field, ठीक है, in end on position और नंबर सेकंड क्या? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। और ड्यू टू पॉइंट चार्ज ओनली, एक ही पॉइंट चार्ज इन पॉइंट चार्ज 1/4πε0 Q/r²। इसमें देखो कितने, देखो ये अलग-अलग से डेरिवेशन आते हैं। एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। देखिए एक होता है एंड ऑन पोजीशन। क्या बोलेंगे? बोलो एंड ऑन पोजीशन, a point at which intensity of electric field is to be determined is taken on the axial line of electric dipole, then the point is known as end on position with respect to electric dipole। वह पॉइंट जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना है, यदि वह पॉइंट, ठीक है, उसकी एक्सियल लाइन माने लाइन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहीं पर भी हो तो वो पॉइंट कहलाता है एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पोजीशन और लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। अब देखो सेकंड, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या है? ए पॉइंट एट विच इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड is taken on the coaxial line या perpendicular bisect with respect to electric dipole, then the point is known as क्या? broadside on position। then the point is known as broadside on position। जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट या कोएक्सियल लाइन पर होता है
उस पॉइंट को, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के रिस्पेक्ट में कोई एक्सियल पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और ट्रांसवर्स पोजीशन। देखिए एंड ऑन पोजीशन, लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन सेम ही है। कोई एक्सियल पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ट्रांसवर्स पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन को बोलते हैं अपन अक्षीय स्थिति, एक्सिस पर है, और इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। कितने होते हैं ये दोनों ही अपने अलग अलग डेरिवेशन होते हैं। काय की अक्षीय स्थिति अपन ने देखो पॉइंट चार्ज के लिए अपन ने सिर्फ एक ही कंडीशन सिचुएशन थी, ओनली पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसमें क्या है देखिए, जैसे कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपका, अब ये देखो ये है प्लस क्यू चार्ज, ये है प्लस क्यू चार्ज। अब देखो अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो ये कहां कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, लॉन्गिट्यूडिनल। और इसके सेंटर से इसके परपेंडिकुलर पर, यानी कि कोई एक्सियल लाइन पर होता है, जैसे ये पॉइंट, तो ये कहां कहलाएगा आपका पॉइंट को एक्सियल पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और ट्रांसवर्स पोजीशन। समझ में आ रही? देखो एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। आज अपन ने क्या क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, when two unlike charge of equal magnitude are placed at very close, are then placed at very small distance, then the system is known as electric dipole. The distance between two charges is known as a dipole length. It is represented by 2l. Right? Electric field produced due to electric dipole is known as dipole field. क्या बोलते हैं? डाइपोल फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड, राइट? कोई डाउट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज of electric dipole and dipole length is known as electric dipole moment. It is represented and dipole electric dipole any one charge q into length क्या 2l, तो p equal to होता है 2ql, right? It is a vector quantity. Its direction is from negative to positive. It is represented by p. Its ऐसा मैंने बोला था कूलम मीटर, c यूनिट स्टेट कूलम सेंटीमीटर। डायमीटर का फार्मूला हमने डिस्कस किया था m08 e a। आगे देखना है अपन को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, एक होती है एंड ऑन पोजीशन, एक होती है ब्रॉड साइड ऑन। एंड ऑन पोजीशन, लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। A point at which intensity of electric field is to be determined is taken on the axial line of electric dipole. Then the point is known as end on position with respect to electric dipole. A point at which intensity of electric field is to be determined is taken on the coaxial line. Then the point is known as broadside on position. End on position also known as axial or longitudinal position, or broadside on position is also known as coaxial position or transverse position. इसके नोट्स वगैरह सारे नोट्स हम आपको मंडे को देंगे। कल हम आपको पढ़ाएंगे ए की डेरिवेशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कल का देखेंगे अपन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन। कल केवल एक ही डेरिवेशन हो पाएगा, ठीक? दैट्स ऑल।